guys, welcome to my channel Learn Me Study Line. Let's do all questions of exercise 1D of rational number chapter class 8 R. Segwal book chapter 1 exercise 1D. So let's start. Let's do question number first of exercise 1D, that is rational number. Question number first is find each of the following products. So ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये और ये कैंसिल होता है एक दूसरे से, और ये कैंसिल होता है, पर यहाँ पे कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7 3 जा -21/8 5 जा 40। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा -9/2 इंटू 5/4। ये भी किसी चीज़ से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको भी ऐसे लिखेंगे 9 5 जा 45/4 2 जा 8 इज आवर आंसर। थर्ड ऐसे ही बनेगा -6/11 इंटू -5/3 -6/11 इंटू -5/3 3 2 जा 6 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस बाई 11 इज आवर आंसर। Next fourth -2/3 into 6/7 3 2 जा 6 2 2 जा 4 -4/7 is the answer. Next 5 -12/5 into 10/-3 3 4 जा 12 5 2 जा 10 4 2 जा 8 -8 is the answer. 6 25/-9 into 3/-10 3 3 जा 9 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5/3 2 जा 6 the answer -6. Seventh is our 5/-18 into -9/20 9 2 जा 18 5 4 जा 20 equals to -1/4 2 जा 6 4 2 जा 8 -8 minus minus cancel equals to 1/8 is the answer. Let's do question number 9 as 8 is -13/15 into -25/26 13 2 जा 26 5 3 जा 15 5 5 जा 25 equals to 5/6 is our answer. Let's do 9th 16/-21 into 14/5 7 2 जा 14 7 3 जा 21 16 2 जा 32 5 3 जा 15 -15 is our answer. Now 10th -7/6 into 24 6 6 2 12 6 18 6 4 जा 24 6 4 जा 24 7 4 जा 28 -28 is our answer. 11th part is 7/24 into -48 तो यहाँ पे माइनस पहले हटा देंगे, ब्रैकेट सॉरी हटा देंगे -48 24 2 जा 48 7 2 जा -14 is our answer. Let's do last part now. Last part is -13/5 into -10 equals to -13/5 into -10 5 to the 10 -26 is our answer. Let's do question number second of exercise 1E, that is rational number. Question number second is verify each of the following. So first is 3/7 into -5/9 equals to -5/9 into 3/7. So इसे वेरीफाई करना है, तो ये हमारा हो गया LHS और ये हो गया RHS. So फर्स्ट हम LHS निकालेंगे 3/7 into -5/9 3 3 जा 9 -5/21 is our answer. फिर RHS
RHS equals to minus 5 by 9 into 3 by 7 equals to minus 5 by 21. So LHS equals to RHS is proved. Now second one is minus 8 by 7 into 13 by 9 equals to 13 by 9 into minus 8 by 7. यहाँ हमारा हो गया LHS, ये हो गया RHS. फिर यहाँ पे LHS equals to minus 8 by 7 into 13 by 9. सो किसी चीज़ से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 8 3 24, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 13 8 जा 8 3 जा 27, 8 3 जा 24 का 4, कैरी 2, 8 1 जा 8, 9 and 10 104. और 9 5 जा 9 7 जा 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 9 6 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63. RHS 13 by 9 into minus 8 by 7 equals to minus 1 by 4, 104 into 63 by 63. So LHS equals to RHS proved. Let's do third part. Third part is minus 12 by 5 into 7 by minus 36 equals to 7 by minus 36 into minus 12 by 5. It is our LHS. It is our RHS. पहले हम LHS निकालेंगे. LHS equals to minus 12 by 5 into 7 by 30 minus 36. 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36. 12 3 is 36 minus 7 by 5 3 is minus 15. Minus minus cancel equals to 7 by 15 is LHS. Now RHS 7 by minus 36 into minus 12 by 5. 12 3 is 36 minus 7 by minus 15 equals to 7 by 15 is our answer. So LHS equals to RHS is proved. Let's do fourth part now. Minus 8 into minus 13 by 12 equals to minus 13 by 12 into minus 8. ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS. So LHS equals to minus 8 into minus 13 by 12. 2 4 is 8, 2 6 is 12, 2 3 is 6, 2 2 is 4. 13 2 is 26 by 3. Minus minus cancel, minus minus plus. RHS equals to minus 13 by 12 into minus 8. Equals to 26 by 3. So LHS equals to RHS is proved. Let's do question number 3 of exercise 1D, that is rational number class 8. Question number 3 is verify each of the following. Question number 1 is 5 by 7 into 12 by 13 into 7 by 18 equals to 5 by 7 into 12 by 13 into 7 by 18. So ये LHS हो गया और ये RHS. LHS निकालेंगे
5/7 into 12/13 into 7/18। ये किसी चीज़ से कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। 12 5 जा 60 बाई 13 7 जा 91 into 7/18। 7 13 जा 91, 2 9 जा 18, 2 30 जा 60, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। सॉरी नहीं कटेगा। तो 10/13 3 जा 39। नाउ RHS equals to 5/7 into 12/13 into 7/18, 5/7 into 12 हो गया। 2 6 जा 18, 2 9 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 equals to 7 2 जा 5/7 into 7 2 जा 14/13, 3 जा 39 equals to 5 2 जा 10/39. So LHS equals to RHS is verify. Let's do next part. Next part is second, minus 13/24 into minus 12/5 into 35/36 equals to minus 13/24 into 12/5 into 35/36. LHS, RHS. So LHS equals to minus 13/24 into minus 12/5 into 35/36. 5 7 is 35, 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36. ओके और फिर 7 3 is 21, 7 4 is 28। हो गया कैंसिल। हमारे पास बचा है minus 13/4 3 is 12 is sorry. Now RHS equals to minus 13/24 into minus 12/5 into 35/36. 12 2 is 24, 5 7 is 35, नहीं कैंसिल नहीं होगा। तो ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 36 ही होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 7/36 2 जा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 and 7. So LHS equals to RHS is not equals to RHS. Verify. 13 is LHS equals to minus 9/5 into minus 10/3 into 21/-4. 3 3 is 9, 5 2 is 10, 2 4 is 8, 2 2 is 4. So minus 3 है equals to 3 1 is 3, 3 2 is 6 by 2. Now RHS equals to minus 9/5 into minus 10/3 into 21/-4. 3 7 is 21, 2 2 is 4, 2 5 is 10, 5 5 cancel, 9 7 is 63/2. So LHS equals to RHS is verified. Let's do question number 4 of exercise 1D, that is rational number
Question number 4 is fill in the blanks. So first of fourth is minus 23 by 17 into 18 by 35 equals to 18 by 35 into dash. सो यहाँ पे रहेगा माइनस 23/17, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब ऐसा इनटू और इक्वल्स टू का साइन रहे जिधर भी, तो इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड में जो रहेगा वो भी इक्वल्स टू के राइट साइड में ही रहेगा. तो सेकंड है -38 इंटू -7/19 इक्वल्स टू -7/19 इंटू डैश. यहाँ पे -38 रहेगा. थर्ड है थर्ड है 15/7 इंटू -21/10 इंटू 5/6 -5/6 इक्वल्स टू डैश इंटू -21/10 इंटू -5/6. यहाँ पे होगा 15/7, क्योंकि इधर 15/7 है, इधर नहीं है. सो फोर्थ -12/5 इंटू 4/15 इंटू 25/-16 इक्वल्स टू -12/5 इंटू 4/15 इंटू डैश. यहाँ पे होगा क्या 25/-16. Let's do question number 5th of exercise 1D, that is rational number. Question number 5th is find the multiplication inverse of 13/25. मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स मतलब किस चीज़ से मल्टीप्लिकेट करें कि वो आंसर वही आए. तो इसका आंसर बस सिंपल सा है, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमिनेटर कर देना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर. तो 25/13 इज आवर आंसर. नेक्स्ट सेकंड है -17/12 इक्वल्स टू, जो बड़ा नंबर होता है वो माइनस को यहीं पे जहाँ रहता है वहीं पे छोड़ देता है. वैसे तो न्यूमिनेटर में होता है, तो बड़ा नंबर है ये 17, तो ये यहीं पे छोड़ देगा. तो -12/17 इज आवर आंसर. नाउ थर्ड -7/24 इक्वल्स टू, देखिए ये छोटा है, ये जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है. तो हमारा माइनस क्या होगा, माइनस न्यूमिनेटर में ही होता है, तो यहाँ पे भी माइनस न्यूमिनेटर में होगा, क्योंकि छोटा है तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो पढ़ना नहीं है, बस बड़े वाला पढ़ना है. और यहाँ पे वैसे भी हम वहाँ पे रखेंगे 24/7 इज आवर आंसर, -24/7. फिर फोर्थ है 18 जैसे 18/1 है तो 1/18 उसका आंसर होगा 1/18. फिर नेक्स्ट फिफ्थ है -16, तो -16/1 होता है, किसी के नीचे कुछ नहीं होता है, तो फिर 16 है. और फिर तो 16/1 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेट इन्वर्स करना है, तो 1/16 हो जाएगा. -1/16 इज आवर आंसर. नाउ सिक्स्थ पार्ट -3/-5 इक्वल्स टू, जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया. अब मल्टीप्लिकेट इन्वर्स करेंगे, 5/3 इज आवर आंसर. नाउ सेवन्थ है -1 इक्वल्स टू, जैसे 1 का -1/1 हो जाएगा, तो फिर वापस -1 ही आंसर आएगा. अगर -1 से कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिया है, तो कोई भी चीज़ अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस. और फिर 8 है 0/2 इक्वल्स टू
0/2, न्यूमिनेटर 0 कभी नहीं होता है, तो यहाँ पे डज नॉट एक्सर्ट लिखेंगे, डज नॉट EXERST, सॉरी EXIST होता है, इज द आंसर. Let's do next part. Next part is 9th. नाइन्थ है 2/-5 इक्वल्स टू, तो ये नीचे है, हाँ तो नीचे है तो डिनोमिनेटर में कभी कोई माइनस नहीं रहता है, तो ऊपर आ जाएगा, तो -5/2 इज द आंसर. नाउ 10th है -1/8 इक्वल्स टू, फिर ये वहीं पे रहेगा, -8/1 इज द आंसर. हाँ, और ऐसे भी शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो हम ऐसे सिंपल फॉर्म में -8 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी हमारा आंसर आ सकता है. तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें रेसिप्रोकल करना होता है. यहाँ पे लिखते हैं हम IE रेसिप्रोकल, मतलब जो भी नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जो भी नंबर है उसे हमें रेसिप्रोकल करना है. रेसिप्रोकल मतलब किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे, जैसे यहाँ पे है A/B, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पे हमारा आएगा B/A. फिर जैसे यहाँ पे C/D है, फिर यहाँ पे आ जाएगा D/C. मतलब ये जो हमारा नंबर है वो हमारा दोनों वो है रेसिप्रोकल है, और ये जो है वो रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर टू रेसिप्रोकल, रेशनल नंबर टू रेसिप्रोकल, मतलब कि जो है न्यूमिनेटर में जो है, सॉरी न्यूमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा. वो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही होता है, तो उसमें कोई मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. Let's do question number 6 of exercise 1D, that is rational number. Question number 6 is find the value of. So first of 6 is 5/8 of whole square -1. जब -1 आ जाता है होल स्क्वायर में तो हमें रेसिप्रोकल करना होता है. तो यहाँ पे माइनस आ गया, कभी माइनस आ जाए तो हमें तुरंत रेसिप्रोकल करना होता है. तो यहाँ पे माइनस आ गया तो 8/5 और फिर 1 कर देंगे. 1 जैसे 1 का कोई मान नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, तो ये 1 हटा देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा. ऐसे ये भी बनेगा, ये है -4/9 के पावर 1, ये बनेगा, ये भी इसमें भी माइनस है, तो 9, इसमें भी 9 -9/4 इज़ द आंसर. और ये भी ऐसे बनेगा, तो ये -7/1 होगा, और माइनस के पावर -1 इक्वल्स टू -1/7 के पावर 1 इज़ द आंसर. सो हम देखते हैं हमारा आंसर आया कि नहीं. यस, हमारा आंसर सारा का आ गया है. सो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1/-3 के पावर -1 इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल करना है तो -3/1, तो 1 हटा देंगे तो -3 इज आवर आंसर. सो मैं इसमें ये बताने जा रही हूँ कि जो इस पे फॉर्मूला लगता है फाइंड द वैल्यू ऑफ में, सो ये 1 का फॉर्मूला मैं बता रही हूँ. जैसे A/B के पावर अगर -1 आ जाए तो क्या लिखेंगे, B/A. अगर वैसे ही A/B के पावर 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे, 0 का पावर कभी भी 1 आता है, तो हमारा आंसर 1 आएगा, ना A आएगा ना B आएगा, आंसर 1 आएगा. अगर A/B के पावर -3 है, तो पहले तो माइनस है तो हमें B/A करना है, इक्वल्स टू, फिर 3 लिखेंगे,
माइनस हटा देंगे क्योंकि माइनस हम सॉल्व कर लिया। फिर बी बाई ए इंटू बी बाई ए इंटू बी बाई ए, तो जितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर 4 रहेगा, 4 4 4 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 बाई यहाँ पे 2 रहेगा, 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इज़ आवर आंसर। ऐसे ही एक और फार्मूला होता है ए बाई बी के होल स्क्वायर 0 प्लस ए बाई बी के होल स्क्वायर 0। तो ये हमारा 1 + 1 इक्वल्स टू 2, हमारा आंसर आ गया, सिंपल। अगर ऐसे ही ए बाई बी के होल स्क्वायर 0 प्लस ए बाई बी के होल स्क्वायर -3, तो 1 प्लस ए बाई बी, जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2, ए की जगह पे 2 ले लेते हैं और बी की जगह पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर -3 है, तो 3/2 पहले रेसिप्रोकल हो गया, फिर 3 लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू में इधर लिखेंगे इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 1, और ऐसे लिखेंगे प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाय 2 2 जा 4 4 2 जा 8 लिखा गया। अब जो 1 है वो ऊपर वाले में प्लस होगा, तो 28/8 is our answer. Let's do question number 7 of exercise 1D, that is rational number. Question number 7 is verify the following. First, 3/7 into 5/6 plus 12/13 equals to 3/7 into 5/6 plus 3/7 into 12/13. It is our LHS and it is our RHS. So first LHS equals to 3/7 into 5/6 plus 12/13 equals to 3/7 into, इसका एलसीएम 78 आएगा, 6 और 13 का, 6 13 जो 78, तो 13 6 जा कितना होता है, 65 होता है, तो 65 लिखेंगे, 65 प्लस 12 12 6 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 32, 12 1 जा 12, 12 6 36, 12 5 50, 12 5 60, 12 6 जा 72। Next, 3/7 into 5 6 7 13/78, फिर ब्रैकेट हटाएंगे, 3/7 into 137/78, फिर कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 इक्वल्स टू 137 बाय, कैरी 4 7 2 40 15 16 17 18, 137 by 102. Now RHS equals to 3/7 into 5/6 plus 3/7 into 12/13, 3 2 जा 6, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/7 प्लस 12 3 जा 17, 13 7 जा 7 3 जा 21 के 1, कैरी 2 7 7 91। अब देखते हैं कटता है कि नहीं। ये नहीं कटेगा। अब हम इसे एलसीएम निकाल रहे हैं, 91 का और 36 का, 7 का। ये किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 91 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 या 7,
सो सॉरी, यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 होता है, तो यहाँ पे 14 रहेगा। 14 और 19 का एलसीएम हमारा होगा 182। 14 91 ज़ा 182, तो 81 से 91 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 65 आएगा हमारा, प्लस 72 इक्वल्स टू 137/182। सो LHS और RHS सेम है, तो सो LHS equals to RHS is proved. Let's do next question. Next question is -15/4 into -3/7. Sorry, to -15/4 into 3/7 plus -12/5 equals to -15/4 into 3/7 plus -15/4 into -12/5. It is LHS and it is RHS. तो LHS equals to -15/4 into 3/7 plus -12/5. क्वेश्चन हमने उतार लिया। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो 4 into 3/7 plus -12/5. Now -15/4 into इन दोनों का एलसीएम 35, 7 5 35, 3 5 15 -84 equals to -15/4 into -69/35. 5 3 15, 5 7 35 equals to 207, minus plus 207/28. And RHS equals to -15/4 into 3/7 plus 15/4 into -12/5. यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, 5 3 15, 4 3 12, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इसे हम 45/28 प्लस 3 3 9/1, इन दोनों का 45 सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया। सो इक्वल्स टू 28 का 8 28 -45 प्लस 252 इक्वल्स टू प्लस माइनस -207/28. So LHS equals to RHS is proved. Now third is -8/3 plus -13/12 into 5/6 equals to -8/3 into 5/6 plus -13/12 into 5/6. ये है LHS और ये है RHS. सो फर्स्ट LHS निकालना है। LHS हमारा है -8/3 प्लस -13/12 into 5/6 equals to LCM is 12. ये 4 the 12, 4 32 plus minus 13 into 5/6 equals to 45/12 into 5/6. 5 and तुम्हारा आएगा 25/4 4 2 8 is sorry. Now RHS equals to -8/3 into 5/6
प्लस -13/12 इंटू 5/6, 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 4 5 जा 20/9 प्लस -65/72 इक्वल्स टू हमारा -20/9 प्लस -65/72 इक्वल्स टू -160 -65/72 इक्वल्स टू 225/72, 24, 75, 25, 8 equals to, so 25/8 is our answer. So LHS equals to RHS is proved. सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे 225 कहाँ से आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो 225 आ जाएगा, फिर सारा कैंसिल हो जाएगा, -25/8 इज द आवर आंसर. दिस द फोर्थ क्वेश्चन इज -16/7 इंटू -18/9 प्लस -7/6 equals to -16/7 plus into -8/9 plus -16/7 into -7/6. सो LHS हमारा होगा ये इतना इक्वल्स टू क्या आ गया, -16/7 इंटू -18/9 प्लस -7/6 इक्वल्स टू -16/7 का -16/7 रह जाएगा इंटू 9 और 6 का 18, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, -36 -21 माइनस प्लस 6 7 5 -18, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, इक्वल्स टू -16/7 इंटू -57/18, 2 8 16, 2 9 18 equals to 296/63, 9 63. अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, RHS हमारा -16/7 इंटू -8/9 प्लस -16/7 इंटू -7/6 कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, सो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, -128/9 9 7 जा 63 प्लस 7 8/3 इक्वल्स टू 63 का 63, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है, सो -128 -168, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, तो प्लस करेंगे 8 16 का 6 कैरी 1 9 2/63. सो LHS equals to RHS is proved. Let's do question number 8 of exercise 1D, that is rational number. Question number 8 is name the property of multiplication in illustrate by each of the following statement. ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो नंबर है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, सर इन्वर्स करना है, मल्टीप्लिकेशन इल्यूस्ट्रेट करना है, तो ये होगा हमारा, इसका आंसर है कॉम्युलेटिव लॉ, क्योंकि जब एक ही चीज़ होता है और इक्वल्स टू करके ये लास्ट वाला चीज़ फर्स्ट और फर्स्ट वाला चीज़ लास्ट करते हैं, उसे कम्युलेटिव लॉ कहते हैं. और सेकंड है -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5 इक्वल्स टू -2/3
इंटू 7/9 इंटू -9/5। ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्योंकि ऐसे जब बोलता है इक्वल्स टू के पहले ऐसे ब्रैकेट में करके दो, फिर इसके आगे, तो फिर ऐसे करके फिर ब्रैकेट में ये दोनों करना होता है, तो एसोसिएटिव लॉ होता है। थर्ड है -3/4 इंटू -5/6 प्लस 7/8 इक्वल्स टू -3/4 इंटू 5/6 प्लस -3/4 इंटू 7/8। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ है -16/9 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -16/9 इक्वल्स टू -16/9। तो ये हमारा होता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इंडिफाई। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इंडिफाई। फिफ्थ है -11/15 इंटू 15/-11 इक्वल्स टू 15/-11 इंटू -11/15 इक्वल्स टू 1। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो ये हमारा होता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ सिक्स्थ है 1/5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। जब भी 0 इक्वल्स टू 0 आए तो ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो ये क्वेश्चन हमारा एंड होता है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1D, that is rational number. Question number 9 is fill in the blanks. First, the product of a rational number and its reciprocal is, यहाँ पे क्या रहेगा 1. The product of a rational number and its reciprocal is 1. मतलब 1 से कुछ भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 का तो 1/1 ही आएगा। 2 है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। थॉट द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन प्रोकॉल। इसका आंसर है 1 एंड -1, क्योंकि 1 और -1 एक ऐसा नंबर है जो अपना खुद का रेसिप्रोकल बनाता है। 0 is dash the reciprocal of any number। यहाँ पे लिखा है 0 is not the reciprocal of any number। 0 कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है। फिफ्थ है द रेसिप्रोकल ऑफ A where
a is not equals to 0 is dash 1 by a. Sixth है the reciprocal of 1 by a where a is not equals to 0 is a. Seventh, the reciprocal of a positive rational number is p. इसे हमारा p. फिर एट्थ है the reciprocal of a negative rational number is q. क्योंकि नेगेटिव में q आता है और पॉजिटिव में p आता है. This question is end here. Our next exercise question is in our next video. So don't forget to check out this. Thank you. If you like this video and want more and more amazing video like this, please like, share and subscribe.